Hello students, I hope you all are doing well, and in this video I am going to explain your class 12th Flamingos lesson number 5 Indigo, and this biographical account about Mahatma Gandhi is written by Louis Fisher, and this excerpt has been taken from his book on Mahatma Gandhi, that is The Life of Mahatma Gandhi, and it is one of the best books ever written on Mahatma Gandhi, which is reviewed by Times Educational Supplement students. So without any further ado, let's start. When I first visited Gandhi in 1942 at his ashram in Sevagram. When Louis Fisher visited Gandhi in 1942 at his ashram in Sevagram, which was located in central India, he said, Gandhiji told him, I will tell you how it happened that I decided to urge the departure of the British. Gandhiji told him about the incident, which incident compelled him to urge the departure of the British, and that incident took place in 1917. The incident of Champaran student. He had gone to the December 1916 annual convention of the Indian National Congress Party in Lucknow. Gandhi ji went to Lucknow for the annual convention, जो वार्षिक अधिवेशन होता है स्टूडेंट्स, that is the annual meeting of Indian National Congress Party in Lucknow. There were 2,301 delegates. There were around 2,301 representatives and many visitors, representatives of different places. During the proceedings, Gandhiji recounted a peasant came up to me looking like any other peasant in India. Then during that proceeding, जब चल रही थी सब चीज़ें, इवेंट्स चल रही थी, कार्रवाई चल रही थी, तो उसी समय एक पीजेंट आया उनके पास जो कि इंडिया के अदर पीजेंट्स की तरह दिखता था. पीजेंट मीन्स स्टूडेंट फार्मर. Poor and emaciated. That farmer was poor and emaciated, मतलब काफ़ी गरीब था. I said that farmer said to Gandhiji, I am Rajkumar Shukla. I am from Champaran. He told Gandhiji that I am Rajkumar Shukla. That name of the farmer is Rajkumar Shukla. Remember this name, student. And I am from Champaran. मैं चंपारण से हूँ. I want you to come to my district. And he requested Gandhiji to come to his district Champaran. गांधी जी हैड नेवर हर्ड ऑफ दिस प्लेस. गांधी जी ने इस जगह के बारे में कभी नहीं सुना था. इट वॉज इन द फुट हिल्स ऑफ द टावरिंग हिमालय नियर द किंगडम ऑफ नेपाल. वो हिमालय की तलहटी पर स्थित था और जो नेपाल का जो राज्य था उसके आसपास, मतलब बिहार जस्ट लोकेटेड बिलो द नेपाल स्टूडेंट. अंडर एन एंशिएंट अरेंजमेंट द चंपारण पीजेंट्स वर शेयर क्रॉपर्स. तो जो पुरानी व्यवस्था चली थी उसके हिसाब से चंपारण के जो किसान थे स्टूडेंट्स वो शेयर क्रॉपर्स थे. बट आइदर राजकुमार शुक्ला वॉज वन ऑफ देम. राजकुमार शुक्ला वॉज अमंग वन ऑफ देम शेयर क्रॉपर्स. ही वॉज इलिटरेट बट रिसोल्यूट. वो असाक्षर था, पढ़े लिखे नहीं थे, अशिक्षित थे, बट रिसोल्यूट दृढ़ था. ही हैड कम टू द कांग्रेस सेशन to complain about the injustice of the landlord system in Bihar. Rajkumar Shukla came to the Congress session. कांग्रेस अधिवेशन में क्यों आया था? To complain about the injustice of the landlord system. जो landlord system था उसकी जो सिस्टम था जो बहुत अन्यायपूर्ण था उसके बारे में कंप्लेन करने के लिए. And somebody had probably said speak to Gandhi. और किसी ने उसी सेशन में उनसे ये कहा कि गांधी जी से बात करो. गांधी जी told Shukla he had an appointment in the Kanpur and was also committed to go to the other parts of India. Gandhiji told Rajkumar Shukla that he had an appointment in Kanpur. उनका क्या था? लखनऊ के पास उनको कहाँ जाना था? कानपुर. Earlier Kanpur used to be written like this. स्टूडेंट देखिए, स्पेलिंग इज CAWNPORE. and was also committed to go to the other parts of India. और उसके बाद इंडिया के अदर पार्ट्स पे भी जाना है. शुक्ल accompanied him everywhere. शुक्ल उनके साथ हर जगह गए. Then गांधी जी returned to his आश्रम near अहमदाबाद. सब जगह से होते हुए गांधी जी अपने आश्रम साबरमती आश्रम जो अहमदाबाद के पास है वहाँ वापस आ गए. शुक्ल फॉलोड हिम टू द आश्रम. शुक्ल उनको वहाँ भी उनके साथ गए. फॉर वीक्स ही नेवर लेफ्ट गांधी साइड. हफ्तों तक गांधी जी का साइड नहीं छोड़ा, गांधी जी के पास ही रहे. फिक्स अ डेट ही बैक. उनसे उन्होंने विनती करी कि एक डेट निर्धारित कर दीजिए. Impressed by the sharecroppers' tenacity and story, गांधी जी said, जो ये थे मजबूती थी जो इनकी शेयर क्रॉपर जो बटाईदार राजकुमार थे, इसकी रिसोल्यूट, इसकी दृढ़ संकल्प जो था, इससे काफ़ी ज़्यादा गांधी जी प्रभावित हुए. एंड आई हैव टू बी इन कलकत्ता ऑन सच डेट एंड कम ऑन एंड मीट मी एंड टेक मी फ्रॉम देयर.
तो गांधी जी कहते हैं कि इस दिन मैं कलकत्ता, एक डेट बताते हैं उनसे और कहते हैं कि इस दिन मैं कलकत्ता आऊँगा, वहाँ आओ, मुझसे मिलो और मेरे को वहाँ से ले चलो। Months passed. Shukla was sitting on his haunches at the appointed spot in Calcutta where Gandhi जी arrived. महीने बीत गए, शुक्ला वहीं बैठे हुए थे बिल्कुल जहाँ पर जिस स्पॉट पर गांधी जी आने वाले थे, मतलब वो ही वॉज ईगरली वेटिंग फॉर गांधी जी एट दैट प्लेस। ओके, ही वेटेड टिल गांधी वॉज फ्री, और उस जहाँ पर गांधी जी की मीटिंग थी वहाँ पर तब तक इंतजार किया जब तक गांधी जी फ्री नहीं हो गए। देन द टू ऑफ देम बोर्डेड अ ट्रेन फॉर द सिटी ऑफ पटना इन बिहार, एंड देन दोनों लोगों ने वहाँ से पटना के लिए ट्रेन पकड़ी। देयर शुक्ला लेड हिम टू द हाउस ऑफ द लॉयर नेम राजेंद्र प्रसाद, और वहाँ से शुक्ला उनको एक लॉयर, एक वकील थे राजेंद्र प्रसाद, उनके घर लेके गए। कौन थे राजेंद्र प्रसाद? हु लेटर बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस पार्टी, जो कि कांग्रेस पार्टी के बाद में प्रेसिडेंट बने ऑफ एंड लेटर ऑफ द इंडिया ऑल्सो, और बाद में इंडिया के भी प्रेसिडेंट बने। राजेंद्र प्रसाद वॉज आउट ऑफ टाउन ऑन दैट डे व्हेन राजकुमार शुक्ला केम टू द हाउस ऑफ राजेंद्र प्रसाद, ही वॉज आउट ऑफ टाउन, वो टाउन से बाहर थे। बट द सर्वेंट न्यू शुक्ला एज अ पुअर योमेन हु पेस्टर देयर मास्टर टू हेल्प द इंडिगो शेयर क्रॉपर्स। लेकिन जो सर्वेंट थे राजेंद्र प्रसाद के घर के, वो ये सब जानते थे कि शुक्ला जो है एक पुअर योमेन है। स्टूडेंट्स, ओके स्टूडेंट्स, योमेन मीन्स स्मॉल लैंडलॉर्ड हु पेस्टर देयर मास्टर, जो कि अपने मास्टर, जो अपने मालिक होता है उनको परेशान करता है, किस लिए? जो इंडिगो के शेयर क्रॉपर्स है उनको मदद करने के लिए। इंडिगो मीन्स स्टूडेंट नील, ओके, जो कपड़े को रंगने के काम आता है। सो दे लेट हिम स्टे ऑन द ग्राउंड विथ हिज कंपेनियन, तो जानते थे कि ये मदद करता है बटाईदारों की, गरीब लोगों की मदद करता है राजकुमार शुक्ला। तो उन्होंने लोगों ने क्या कहा कि गांधी जी को और राजकुमार शुक्ला को वहाँ पर ठहरने की इजाज़त दे दी। गांधी जी हुम दे टुक टू बी अनदर पीजेंट्स, बट गांधी जी को भी उन लोगों ने पहचान नहीं पाया, तो उन्होंने सोचा ये भी कोई एक किसान ही होंगे। बट गांधी वॉज नॉट परमिटेड टू विड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल। देखिए स्टूडेंट्स, गांधी जी को वहाँ पर अलाउ नहीं किया गया टू विड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल, कुएं से पानी निकालने के लिए उनको अलाउ नहीं किया। लेस सम ड्रॉप्स फ्रॉम द बकेट पॉल्यूट द एंटायर सोर्स, नौकरों को ये लगा कि अगर वो पानी निकालेंगे तो पूरा का पूरा जो होगा, अगर थोड़ी सी भी बूंद गिरेगी पानी की तो पूरा का पूरा कुआं जो होगा वो पॉल्यूट हो जाएगा। कास्टिज्म के बारे में स्टूडेंट यहाँ पर बताया गया। हाउ डिड दे नो दैट ही वॉज नॉट एन अनटचेबल, वो जो नौकर थे, जो सर्वेंट्स थे, हाउ डिड दे नॉट नो दैट ही वॉज नॉट एन अनटचेबल? इट इज़ अ टर्म यूज्ड फॉर द लोअर कास्ट स्टूडेंट। सो गांधी जी डिसाइडेड टू गो फर्स्ट टू मुजफ्फरपुर विच वॉज एन रूट टू चंपारण। देन गांधी जी डिसाइडेड टू गो टू मुजफ्फरपुर, वहाँ से गांधी जी ने पटना से डिसाइड किया कि मुजफ्फरपुर जाने के लिए, विच वॉज एन रूट टू चंपारण, जो कि चंपारण के रास्ते में पड़ता है। टू ऑब्टेन मोर कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट कंडीशन देन शुक्ला वॉज कैपेबल ऑफ इम्पार्टिंग, तो वहाँ पे जाके मुजफ्फरपुर में जाके वहाँ पे और जो जितनी भी कंडीशन है, जो भी जिस चीज़ के लिए शुक्ला उनके पास गए थे उसके बारे में और इन्फॉर्मेशन ले सकें, शुक्ला जितना बता रहे हैं उससे भी अच्छी गहन इन्फॉर्मेशन ले सकें। ही अकॉर्डिंगली सेंट अ टेलीग्राम टू प्रोफेसर JB कृपलानी, तो उसी क्रम में उन्होंने एक टेलीग्राम भेजा, किसको? JB कृपलानी को। डिटेल से याद रखिएगा स्टूडेंट, JB कृपलानी कौन थे? ऑफ द आर्ट्स कॉलेज इन मुजफ्फरपुर, जो कि मुजफ्फरपुर के आर्ट्स कॉलेज में ही वॉज एन एम्प्लॉय whom he had seen at टैगोर शांति निकेतन हाउस। गांधी जी की JB कृपलानी से कहाँ मुलाकात हुई थी? टैगोर्स के, गुरु रविंद्रनाथ टैगोर के शांति निकेतन के स्कूल में। द ट्रेन अराइव्ड एट मिडनाइट, ट्रेन रात को पहुंची, ठीक है, 15 अप्रैल 1917 मुजफ्फरपुर में। ओके, कृपलानी वॉज वेटिंग एट द स्टेशन विथ अ लार्ज बॉडी ऑफ स्टूडेंट। कृपलानी जो थे स्टूडेंट के एक बड़े दल के साथ इंतजार कर रहे थे। गांधी स्टेड देयर फॉर 2 days इन द होम फॉर प्रोफेसर मलकानी, और वहाँ पे गांधी जी 2 दिन रुके, किसके घर पर? प्रोफेसर मलकानी के। रिमेंबर द डिटेल, अ टीचर इन अ गवर्नमेंट स्कूल। मलकानी कौन थे? अ टीचर इन अ गवर्नमेंट स्कूल। इट वॉज एन एक्स्ट्रॉर्डिनरी थिंग इन दोज डे, उस समय काफ़ी विचित्र चीज़ थी। गांधी जी कमेंटेड, गांधी जी बता रहे हैं लुईस फिशर को, फॉर अ गवर्नमेंट प्रोफेसर टू हार्बर ए मैन लाइक मी, गवर्नमेंट प्रोफेसर के लिए मेरे जैसे आदमी को शरण लेना, टू गिव अ प्लेस फॉर अ शेल्टर जस्ट टू स्टे अ पर्सन लाइक मी। इसके लिए क्यों ऐसा क्यों कह रहे हैं स्टूडेंट? बिकॉज इन स्मॉल लोकेलिटी द इंडियंस वर अफ्रेड टू शो सिंपैथी फॉर द एडवोकेट्स ऑफ अ होम रूल। शहरों में तो जो लोग आज़ादी के लिए लड़ते थे उनको हीरो माना जाता था, लेकिन जो नगर थे, छोटी छोटी लोकेलिटीज़ थी, जो टाउन्स थी, वहाँ पे लोग अभी भी डरते थे।
उन लोगों से सिंपैथी दिखाने के लिए, उन लोगों के लिए इज्जत दिखाने के लिए जो होम रूल की बात करते थे। होम रूल का मतलब स्वराज की बात करते थे। द न्यूज़ ऑफ गांधीज एडवेंट एंड द नेचर ऑफ हिज मिशन स्प्रेड क्विकली थ्रू मुजफ्फरपुर। तो गांधी जी के आने की खबर और उनका क्या मिशन है उसके बारे में पूरे मुजफ्फरपुर में बात फैल गई और चंपारण में भी। शेयर क्रॉपर्स फ्रॉम द चंपारण बिगेन अराइविंग ऑन द फुट एंड बाय द कन्वीनियंस टू सी देयर चैंपियन। जो शेयर क्रॉपर्स थे, बटाईदार थे जो चंपारण के, वो सब क्या हुआ कि पैदल चलकर आए या फिर साधनों से आए अपने चैंपियन को देखने के लिए। मुजफ्फरपुर लॉयर्स कॉल्ड ऑन गांधी टू ब्रीफ इन। मुजफ्फरपुर के वकीलों को बुलाया गया गांधी जी को ब्रीफ करने के लिए, बताने के लिए मामले को। दे फ्रीक्वेंटली रिप्रेजेंटेड पीजेंट्स ग्रुप्स इन कोर्ट। वो समय समय पर जो किसानों का ग्रुप है उसको कोर्ट में रिप्रेजेंट करते थे यही सब लॉयर। दे टोल्ड हिम अबाउट देयर केसेज एंड रिपोर्टेड द साइज ऑफ देयर फीस। तो गांधी जी को उनके केस के बारे में बताया और साथ ही साथ अपनी फीस भी बताई वकीलों ने। अब यहाँ पर देखिए बहुत इंटरेस्टिंग इंसिडेंट हुआ स्टूडेंट। गांधी जी चाइडेड द लॉयर्स फॉर कलेक्टिंग बिग फी फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स। गांधी जी ने फटकार लगाई उन वकीलों को जो कि बड़ी फीस ले रहे थे उन बटाईदारों से। ही सेड आई हैव कम टू द कंक्लूजन दैट वी शुड स्टॉप गोइंग टू द लॉ कोर्ट्स। अब मैं इस कंक्लूजन पर इस समय पहुंच गया हूं कि हम लोगों को जो न्यायालय नहीं जाना है। टेकिंग सच केसेस टू द कोर्ट्स डज लिटिल गुड। ऐसे केसेस को अगर हम कोर्ट लेके जाएंगे तो कोई फायदा उतना ज़्यादा होने वाला नहीं है। वेयर द पीजेंट्स आर सो क्रस्ड एंड फेयर स्ट्राइकर। यहाँ पे तो पीजेंट जो किसान हैं उनको काफ़ी दबा दिया गया, वो काफ़ी डरे हुए हैं। एंड लॉ कोर्ट्स आर यूजलेस। और जो न्यायालय है ये इस समय बेकार है। द रियल रिलीफ फॉर देम इज़ टू बी फ्री फ्रॉम फेयर। इनके लिए सबसे बड़ी राहत की बात, असली राहत होगी जब ये डर से मुक्त हो जाएंगे। मोस्ट ऑफ द अरेबल लैंड इन द चंपारण डिस्ट्रिक्ट वॉज डिवाइडेड इनटू। जितनी भी उपजाऊ जमीन थी, अरेबल लैंड उपजाऊ जमीन जो चंपारण डिस्ट्रिक्ट में थी स्टूडेंट्स, वॉज डिवाइडेड इनटू लार्ज। वो बटे हुए थे बड़े एस्टेट, मतलब प्रॉपर्टी एस्टेट, बड़ी प्रॉपर्टीज में, ओन्ड बाय इंग्लिश मैन एंड वर्क बाय द इंडियन टीनेंट्स। तो यहाँ पर जितने भी जो प्रॉपर्टीज थी स्टूडेंट, वो जो लैंडेड जागीर जो कहते हैं, ये कौन ओन करता था? अंग्रेज लोग ओन करते थे। और यहाँ पर क्या करते थे, गरीब जो इंडियंस थे वो सब काम करते थे, फार्मर्स। टीनेंट्स मीन्स काश्तकार। द चीफ कमर्शियल क्रॉप वॉज इंडिगो। और जो मेन क्रॉप्स थी इस लैंड में वो कौन सी होती थी? इंडिगो, नील की। द लैंडलॉर्ड्स कंपेल्ड ऑल द टीनेंट्स टू प्लांट दियर 20th और 50% ऑफ देयर होल्डिंग्स विद इंडिगो एंड सरेंडर द एंटायर इंडिगो हार्वेस्ट एज रेंट। तो जो जमींदार थे उन लोगों ने, सारे जो किसान थे उनको क्या कहा था कि उन लोगों को 15% जो उनकी खेती है उस पर इंडिगो बोना है और साथ ही साथ उस जो इंडिगो की जो फसल होगी उसको एज अ रेंट देना है, ठीक है ना। तो दिस वॉज अ डन बाय लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट। ये बहुत सालों से एक लंबा कॉन्ट्रैक्ट करवा लिया गया था और ये इनको करने के लिए वो मजबूर थे। प्रेजेंटली द लैंडलॉर्ड्स लर्न दैट जर्मनी हैड डेवलप्ड अ सिंथेटिक इंडिगो। लेकिन अब जितने भी जमींदार हैं इनको पता चल गया कि जर्मनी देश ने एक सिंथेटिक इंडिगो, मतलब आर्टिफिशियल इंडिगो जनरेट कर लिया है। दे thereupon obtained agreement from the sharecropper to pay the compensation by being released from the 15% arrangement। तो सिंथेटिक इंडिगो के बनने की वजह से जो इंडिया में जो नेचुरल इंडिगो, जो क्रॉप के थ्रू इंडिगो होता था स्टूडेंट, उसका क्या होता था कि अब डिमांड कम हो गई। तो उसकी वजह से ये जो लैंडलॉर्ड्स हैं इन लोगों ने ये कहा कि जो भी तुम्हारा 15% है वह दे दो अपना, मतलब जैसे तुम देते हो जितना तुम्हारा ज़मीन है जिस पे तुमको एग्रीमेंट के हिसाब से खेती करनी है, तो अगर अपनी खेती पे तुम और क्रॉप्स उगाना चाहते हो तो उसके लिए तुमको 15% कंपनसेशन देना होगा। द शेयर क्रॉपिंग अरेंजमेंट वॉज इक्सम टू द पीजेंट्स एंड मैनी साइंड विलिंगली। तो कहीं ना कहीं जो ये अरेंजमेंट था, जो ये व्यवस्था इन लोगों ने बनाई थी अंग्रेजों ने, ये परेशान करने वाली थी कुछ किसानों के लिए, लेकिन कई लोगों ने चाहते हुए भी, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शंस नहीं था, तो उन लोगों ने साइन कर दिया। दोज हु रेसिस्टेड इंगेज लॉयर द लैंडलॉर्ड्स हायर ठग। जिन लोगों ने मना किया, जिन्होंने वकील रखा, तो जो जमींदार थे उन लोगों ने ठग्स को, जो होते हैं दैट इज द मसल मैन रॉबर्स, जो ठग डकैत होते हैं उनको। मीनवाइल द इंफॉर्मेशन अबाउट सिंथेटिक इंडिगो रीच द इलिटरेट पीजेंट्स। लेकिन उसी समय क्या हुआ कि जो सिंथेटिक इंडिगो विच वॉज डेवलप्ड इन जर्मनी, दैट न्यूज़ ऑल्सो रीच टू द इलिटरेट पीजेंट्स। जो अशिक्षित जो किसान थे उनके पास से खबर पहुंची। हु हैड साइन एंड दे वांटेड देयर मनी बैक। जिन्होंने साइन कर दिया था उनके पास भी ये खबर पहुंची, तो उन्होंने क्या करा कि अंग्रेजों से, लैंडलॉर्ड से मांग करी कि आप हमारे पैसे वापस करिए। एट दिस पॉइंट गांधी अराइव्ड इन चंपारण। इस समय गांधी चंपारण पहुंचे। ओके, ही बिगेन टू ट्राई टू गेट द फैक्ट्स। वहाँ पे जितने भी फैक्ट्स का मामला था उसको समझने की कोशिश करी। फर्स्ट ही विजिटेड द सेक्रेटरी ऑफ द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन।
फैक्ट जितने भी थे कि क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है स्टूडेंट्स, क्या व्हाट इज़ द रीज़न, मेन चीज़ क्या है। जैसे कि यहाँ पे देखिए आप स्टूडेंट, यहाँ पे इलिटरेट जो थे, जिन लोगों ने साइन कर दिया था, उनको जब ये पता चला कि जो इंडिगो, जो सिंथेटिक इंडिगो ऑलरेडी डेवलप हो चुका है, तो यहाँ पर अब इंडिगो उगाने से कोई फ़ायदा नहीं है, तो ये ज़बरदस्ती के जो इंग्लिश लैंडलॉर्ड्स हैं वो लूट रहे हैं, तो उनको पता चला कि उनको लूटा गया है, तो इस वजह से उन लोगों ने अपनी मनी बैक मांगी। तो यहाँ पर जितने फैक्ट्स थे गांधी जी को पता चले और वो गए ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन के पास। द सेक्रेटरी टोल्ड हिम दैट दे वुड गिव नो इन्फॉर्मेशन टू एन आउटसाइडर। तो जो सेक्रेटरी था ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन का, दैट टोल्ड हिम दैट दे वुड नो इन्फॉर्मेशन टू द आउटसाइडर, बाहरी आदमी को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे। गांधी जी आंसर दैट ही वॉज नो आउटसाइडर। गांधी जी ने जवाब दिया कि वो कोई बाहरी आदमी नहीं है, जबकि तुम लोग हो, अंग्रेज लोग हो। नेक्स्ट गांधी जी कॉल्ड ऑन द ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर ऑफ द तिरहुत डिवीजन इन विच द चंपारण डिस्ट्रिक्ट ले। ओके, सो यहाँ पर क्या हुआ कि दोबारा से गांधी जी को किसने बुलाया, जो ब्रिटिश कमिश्नर था तिरहुत डिवीजन का, उसने बुलाया, जो कि चंपारण डिस्ट्रिक्ट में पड़ता था। द कमिश्नर गांधी जी रिपोर्ट्स, गांधी जी कहते हैं, प्रोसीडेड टू बली मी एंड एडवाइज मी फॉरथविथ टू लीव द तिरहुत। तो उसने क्या करा कि जो कमिश्नर था उसने गांधी जी को डराया और उनको ये कहा कि अभी के अभी तिरहुत को छोड़ दो। चंपारण डिस्ट्रिक्ट में एक जगह है तिरहुत। गांधी जी डिड नॉट लिव, गांधी जी नहीं गए वहाँ से। इंस्टेड ही प्रोसीडेड टू मोतिहारी, वो वहाँ से कहाँ चले गए, मोतिहारी, द कैपिटल ऑफ चंपारण, चंपारण की कैपिटल थी मोतिहारी। सेवरल लॉयर्स अकम्पनीड हिम, गांधी जी के साथ कई वकील गए। एट द रेलवे स्टेशन अ वास्ट मल्टीट्यूड ग्रीटेड गांधी, रेलवे स्टेशन पे एक बड़ी भीड़ ने गांधी जी को ग्रीट किया। ही वेंट टू हाउस एंड यूजिंग इट एज अ हेडक्वार्टर, वो घर गए और वहाँ पर उस जगह को, मतलब जिस घर पे गए उसको हेडक्वार्टर बनाया अपना। एंड कंटिन्यूज इन इन्वेस्टिगेशन, और अपनी जांच पड़ताल को कंटिन्यू रखा कि कैसे ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन को कोर्ट में टैकल करेंगे। अ रिपोर्ट केम इन दैट अ पीजेंट हैड बीन मालट्रीटेड इन नियर बाय विलेज। तभी एक रिपोर्ट आई कि एक पीजेंट, एक किसान के साथ दुर्व्यवहार हुआ है आस के पास के गांव में। गांधी जी डिसाइडेड टू गो एंड सी, गांधी जी ने निर्णय लिया वहां जाने का और देखने का। द नेक्स्ट मॉर्निंग ही स्टार्टेड आउट ऑन द बैक ऑफ एन एलिफेंट, अगली मॉर्निंग गांधी जी हाथी पर बैठ कर गए। एंड ही हैड नॉट प्रोसीडेड फार व्हेन द पुलिस रिप्रेजेंटेड मैसेज ओवरटुक हिम एंड ऑर्डर्ड हिम टू रिटर्न टू टाउन। और अभी आगे थोड़ा सा ही आगे गए होंगे, तब तक पुलिस सुप्रिटेंडेंट, जो पुलिस का जो इंचार्ज था उस एरिया का, उसका एक संदेश वाहक आता है और वो कहता है उनसे कि आप शीघ्र टाउन की तरफ लौट जाइए। ओके स्टूडेंट, इन हिज कैरियज, अपनी जो जिस गाड़ी पे बैठ कर आए थे, जिससे बैठ कर आए थे उससे, दैट इज द एलिफेंट, गांधी जी कंपाइल्ड द मैसेजर ड्रोव गांधी जी होम वेयर ही सर्व्ड हिम विथ एन ऑफिशियल नोटिस टू क्विट चंपारण इमीडिएटली। मैसेजर क्या कहता है, गांधी जी को घर लाता है, वहाँ पर उनको नोटिस देता है कि आप तुरंत के तुरंत चंपारण को छोड़िए। गांधी जी साइंड अ रिसिप्ट फॉर द नोटिस एंड रोट ऑन इट ही वुड डिसोबे द ऑर्डर। गांधी जी ने रिसिप्ट को रिसीव किया और उस पर एक लिख दिया नोटिस कि वो इस ऑर्डर को नहीं मानेंगे। इन कॉन्सिक्वेंसेज गांधी जी रिसीव्ड अ समन्स टू अपेयर इन द कोर्ट नेक्स्ट डे, और इसी क्रम में गांधी जी को समन आया कोर्ट पर अगले दिन आने का, क्योंकि अधिकारी की बात मानी नहीं उन्होंने। ऑल नाइट गांधी रिमेन्ड अवेक, पूरी रात भर गांधी जगे रहे। ही टेलीग्राफ राजेंद्र प्रसाद टू कम फ्रॉम बिहार विथ इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड, गांधी जी ने राजेंद्र प्रसाद को टेलीग्राफ किया कि अपने प्रभावशाली दोस्तों के साथ आप पहुंचिए। ही सेंड इंस्ट्रक्शन टू द आश्रम, आश्रम में कुछ निर्देश भेज दिए। एंड ही वाइड अ फुल रिपोर्ट टू द वाइसरॉय, और वाइसरॉय को पूरी की पूरी रिपोर्ट उन्होंने फॉरवर्ड कर दी। सो स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो up to this I am going to teach you all, okay, and soon I will release the part 2 of this video students. So watch this video 2 or 3 times my dear kids, and if you will any doubt, if you have any doubt, so you can ask me in the comment section students, and watch the video student, watch the video as much as you can, because it will help you in your board examination, and it will help you to write. Okay, so I will provide 7 to 8 more questions which has been asked in the board examination from the last previous year. So watch and listen this video very carefully students, and if you have any doubt then you are free to ask me in the comment section. So thanks for watching, and God bless you all as always my kids. God bless you all.